Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So we have already discussed regarding our NCERT foundation course, which are from class 6 to 12th. Okay. And basic purpose of this course to build your basics first. Okay. Apart from this, we are going to also launch few foundation courses like maths, reasoning and general science. So those students who are not going to see, तो आप जाइए और इन सारे सर के भी लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखिए. And with this, our Emblem team also going to announce few modular courses. Modular courses, it means we are going to cover each and every subject in very detailed manner, like history, economy, geography, political science and current affairs, where all these three courses like already going on. And apart from this, our English foundation courses are just launched. Okay. सो अभी जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं तो जाइए और ये सारे लेक्चर्स को जो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है वहां पे जाके आप अच्छी तरह से देखिए. ओके, सो इन अर्ली क्लासेस वी हैव डिस्कस 12th class history subject, where we have discussed all the syllabus in very detailed manner, like what is the meaning of theme, part and so on. So here we have finished 2 chapters. You can see here is the basically theme is just name of the chapter. Theme 1, bricks, beads and bones of Harappa civilization, where we try to understand with the help of these 3 things what we can acquire the knowledge. Okay, then we have also finished kings, farmers and towns. Now we are going to start this one, kingship, caste and class of early societies. Okay, where we have discussed regarding what is the meaning of C, सिरका. जब आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है तो उससे पहले आप C लगा देते हैं. Okay, so let's see. And we have also mentioned all those difficult words in very simplified manner, so those students you can go and also learn all these things. You can see here. And one we have already discussed regarding what is the meaning of BC, AD, like before Christ, before common era, Anno Domini. So we have already covered all these things in our previous lecture, so just go and see all these things. So let's see here. So this is not in your syllabus, Stone Age. When we will start modular course, then we will cover all these things. Okay, we have already finished IVC, Indus Valley Civilization. अर्ली क्लास में मैंने इंडियन वैली सिविलाइजेशन बोल दिया था, उसके लिए सॉरी. दैट इज बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, एंड वी आर गोइंग टू सी नाउ वैदिक, महाजनपदा, मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन. सो टुडे आवर टॉपिक इज बेसिकली what transformation basically takes place in societies. समाज में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए जब अर्ली सोसाइटीज एंड अर्ली सिटीज का इवॉल्व हुआ. लाइक आप महाजनपदा पीरियड में देखिए 16 महाजनपदा का इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो फॉर्मेशन हुआ, जहां मगधा, तक्षशिला, ओके, सब कुछ हमें अच्छी तरह डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. ओके, सो देखो चैप्टर नेम क्या है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ऑफ विच पीरियड C 600 BCE to what 600 CE, कॉमन एरा. सो यहाँ पे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं पूरा चैप्टर का, जो कैसे कास्ट, क्लास कैसे फॉर्म होते हैं. तो ये जस्ट स्लाइड मैंने लगाया है. जैसे आप देख सकते हो मेजर सिटीज का डेवलप हुआ, लाइक हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, पंचाला हो गया, तक्षशिला हो गया एंड सो ऑन. ओके, देन उसके बाद वर्ण सिस्टम का होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. जैसे प्रीस्ट, स्कॉलर्स, टीचर्स इस ब्राह्मण्स में आ जाते हैं. ब्राह्मण्स जो होते हैं, क्षत्रिय जो बेसिकली क्या युद्ध करते हैं, वॉर करते हैं, उसकी बात करते हैं. उसके बाद क्लास, किंगशिप की बात करते हैं, जैसे जस्टिस, किंग्स जो होगा कैसे जस्टिस करेगा, विद द हेल्प ऑफ विच बुक दे डिलीवर द जस्टिस. ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बुद्धिस्ट व्यू क्या था, जैनिज्म का इवोल्यूशन है, उन्होंने सोसाइटी को किस तरह से देखा वो यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये सारे मैंने स्लाइड लगाए हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे. पैट्रिलिनी क्या होता है, मैट्रिलिनी क्या होता है, मोनोगेमी, पोलेंड्री एंड सो ऑन. सो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है. ओके, लेट्स सी. अब देखते हैं एक एक लाइन और एक एक वर्ड को अच्छी तरह देखेंगे, हर चीज को, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. ओके, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ दैट देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमी एंड political life between what C 600 BC to 600 CE. In early classes we have studied and discussed regarding how when early cities evolved, जब वो इवॉल्व होती है, जब उनका उत्पन्न होता है, तो
बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस सोसाइटीज में आते हैं। क्या आते हैं, तो वही यहाँ पे चैप्टर और जो हमारे हिस्टोरियन होते हैं वो कहना चाहते हैं। सम ऑफ द चेंजेस इन्फ्लुएंस द सोसाइटीज एज वेल, कुछ चेंजेस होते हैं जो समाज को बहुत प्रभाव डालते हैं समाज के ऊपर। ओके सर, फॉर इंस्टांस एग्जांपल के तौर पे द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्टेड एरिया ट्रांसफॉर्म द व्हाट लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर, जो फॉरेस्ट में जो रहते थे उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके देन क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज द डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, जो ये जितने पेस्टोरलिस्ट थे, कौन से, जो फॉरेस्ट में रहते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन रहते थे, ये जितने भी कम्युनिटी था ना, ये डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप में उभर के सोसाइटी के सामने आते हैं। ओके देन देखते द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन द सोशल डिफरेंसेस। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस ये कहना चाहता है जो वहां पे जो इक्वल जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था। ओके लाइक किसी के पास ज्यादा थे, किसी के पास कम थे, और ये सोशल डिफरेंस जो होते हैं ना सोसाइटीज में इंक्रीज एट वेरी फास्ट रेट से धीरे धीरे ग्रो होता है। तो हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज प्रोसेस। अब टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो लिखे हैं, आप कह सकते हैं धर्मसूत्र लिखे हैं, ऋग्वेदा लिखे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सो मेनी रिचुअल टेक्स्ट्स आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आवर हिस्टोरियन ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दीज चेंजेस। ओके सो यहाँ पे वही हिस्टोरियन का सम टेक्स्ट, अब देखो कुछ ऐसे टेक्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर्स, जो समाज में उनका सोशल बिहेवियर्स, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन क्या थे, वो टेक्स्ट को पढ़ के हिस्टोरियन फाइंड आउट करते हैं। देन अदर डिस्क्राइब्स ओकेजनली कमेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस। कुछ देखते हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं उन पे वो कमेंट करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस है। जैसे हम मैरिज सिस्टम की बात करेंगे, जो 8 प्रकार की मैरिज सिस्टम कौन सी होती थी वहां पे। ओके वी कैन ऑल्सो कैच ए ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था, अशोका का, समुद्रगुप्त मौर्य का इंस्क्रिप्शन, शिलालेख हिंदी में जिसको बोलते हैं। जब किसी हार्ड सरफेस पे कुछ मेजर जो डिसीजन होते हैं वो रूलर्स के द्वारा इंस्क्राइब और लिखा दिए जाते थे, उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो हिस्टोरियन उस इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं और उसके द्वारा वो फाइंड आउट करते हैं जो क्या चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में। ओके as we will see each text and inscription, हिस्टोरियन यहाँ पे कहना चाह रहा है जब हम पढ़ते हैं हर इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट को, was written from the perspective of what specific social category, जो स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज के लोग होते हैं, जैसे राजा हो गए, महाराजा हो गए, और यू कैन से ब्राह्मण्स हो गए, उनको वो लिखवाते थे और उन्हीं को यहाँ पे हिस्टोरियन इंडिकेट किया है। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड एंड व्हाट फॉर होम। जो यहाँ पे हमें माइंड में रखने के लिए यही है जो किसने इसको बनाया और किसके लिए बनाया, किसको ये ऑर्डर दिए गए। ओके सो देखते हैं, वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज यूज्ड। अब विच टाइप ऑफ लैंग्वेज बेसिकली यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। ओके and the ways in which the text circulated. Okay, use carefully. Text allow us to pieces together attitude and practice that shape social histories. अब देखो जो भी इंस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे, चाहे हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, तो उनको एक जगह से स्टोरी तो पूरी नहीं मिल सकती है। डिफरेंट इंस्क्रिप्शन हैव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट ऑर्डर्स। तो हिस्टोरियंस हमारे क्या करते हैं, जो हर इंस्क्रिप्शन को स्टडी करके उनके छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके और तब वो वहां पे इंटरप्रेट करना चाहते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी में क्या चल रहा था, क्या रनिंग था उस समय पे। ओके तो इन फोकस ऑन द महाभारत, हम यहाँ पे स्पेशल महाभारत को स्टडी करेंगे। क्लोजल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस। 1 लाख उनमें छंद थे, छंद मतलब समझ रहे, जो वर्सेस उसमें थे, विद डिपिक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन, जहां पे सोशल कैटेगरी को बहुत ही बड़े स्तर पे दिखाया गया है। ओके वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसको सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया एंड सराउंडिंग एरिया, जैसे आप बोल सकते हो नेपाल बोल सकते हो, श्रीलंका बोल सकते हैं। We have also covered what is the meaning of subcontinent. Okay, so don't worry, just go and see our previous lecture. Okay, so ये हमारा richest text है पूरे सबकॉन्टिनेंट में। तो महाभारत के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। It was composed over period of 1000 years के दौरान इसको कंपोज किया गया। like C 500 BC में अभी बताए C का मीनिंग क्या होता है onwards, and some of the stories or it contains may have been circulated what
इवन अर्लियर। इनके कुछ स्टोरीज है ना जिससे पहले भी चले आ रहे थे, जरूरी नहीं है जब ये कंपोज हुआ उसी समय इसकी सारी स्टोरीज लिखे गए। फ्यू स्टोरीज वर ऑलवेज देयर, ओके, इवन बिफोर ही कंपोज्ड इन फाइनल फॉर्म। ओके, दैट सेंट्रल स्टोरी इज अबाउट व्हाट, टू सेट ऑफ जैसे वॉरिंग कजन थे जो आपस में लड़े, जैसे कौरव और पांडवस की यहाँ बात करेंगे। ओके, द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शन लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर व्हाट, वेरियस सोशल ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन है जो डिफरेंट ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब आप खुद थिंक करो जो डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने एकलव्य की स्टोरी पढ़ी होगी, द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांगा था दक्षिणा के तौर पे, तो यहाँ पे वही इंडिकेट करेगा, अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, देन उसके बाद है ओकेजनली कभी कभी, नॉट ऑलवेज, द प्रिंसिपल कैरेक्टर सीम्स टू फॉलो दिस नॉर्म। कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो फॉलो करते थे जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन थे। What does conformity with norms and deviation from them signify? अब यहाँ पे स्टोरी नहीं है, क्या चाहते थे, क्या जितने भी रूलर्स थे हमारे ब्राह्मण्स थे ये नॉर्म्स को फॉलो करते या कुछ उनमें से डेविएशन भी मिले हैं, या मतलब इट मींस फॉलो नहीं भी करते थे। तो वहां पे हिस्टोरियंस ये कहना चाह रहे हैं, जो ये आगे हम देखेंगे। ये देखो स्कल्पचर, टेराकोटा स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं, डिपिक्शन अ सीन फ्रॉम द महाभारत। अब ये आप बताइए कौन सा सीन है महाभारत के। ये भीष्म पितामह का है क्या, जब वो कहते हैं जो तीर पे लेटे हुए थे, तो ये आप बताइएगा, ठीक है। तो टेराकोटा बेसिकली मैंने बताया था एक मिट्टी होती है जिससे क्या करते थे, वो स्कल्पचर बनाते थे, वही यहाँ पे ये एनसीईआरटी का सारा है, मैंने कुछ अपने से कॉपी नहीं किया, एनसीईआरटी ही हम पढ़ रहे हैं एक एक लाइन। अब है क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। अब देखो हिस्टोरियंस अब क्या किए, कुछ क्रिटिकल आलोचनात्मक उन्होंने बुक लिखी, किसके बारे में, महाभारत के बारे में, क्या ये सही थे या नहीं थे, उनको वो स्टडी किया और कैसे किया वो यहाँ दिखाते। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप बिगन इन विच ईयर, 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृत जो हमारे थे, वीए सुक्तांकर के अंदर एक कहते हैं एक आप कह सकते हैं जो एक जर्नी स्टार्ट हुआ जो क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन किसके बारे में, महाभारत के बारे में वो दे सके। ओके, अ टीम कंप्राइजिंग अ डजन्स ऑफ स्कॉलर्स, उसमें एक डजन स्कॉलर्स थे, और टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या ऐसा इन्वॉल्व था। इट मीन कलेक्टिंग संस्कृत मनुस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट। अब वो क्या किए, डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट में गए, here and there and try to collect different manuscript, और manuscript में से उन्होंने क्या फाइंड आउट कराया, डिफरेंट क्या वर्ड्स, और वर्ड्स को उन्होंने मिलाए, जो वर्ड्स एक साथ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। वहीं पे रिटन इन वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको। द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। अगेन मैंने जैसे बोला, जो हर मनुस्क्रिप्ट को उन्होंने स्टडी किया, डिफरेंट वर्ड्स को उन्होंने कंपेयर किया मिलाने के लिए। अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर व्हाट कॉमन टू मोस्ट वर्जन एंड पब्लिश्ड इन दिस सर्वल वॉल्यूम। अब जो वर्ड उनको मिल रहे थे जो एक साथ, जैसे आप संगम लिटरेचर को देखेंगे, वहां पे उन्होंने वहां के वर्ड देखे, देन श्रीलंका में लिखे गए महाभारत वहां के वर्ड देखे, उनको कंपेयर किया और सबको मिला के उन्होंने एक वॉल्यूम में एक बुक पब्लिश की। ओके, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेज का। द प्रोजेक्ट टुक 47 इयर्स टू कंप्लीट, 47 साल लगे थे उसको कंप्लीट होने में। ओके, तो टू थिंग्स बिकम अपैरेंट। अब दो ऐसे चीजें जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन, कुछ कॉमन एलिमेंट संस्कृत वर्जन के स्टोरी में जैसे मिले, एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, लाइक फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल, जैसे बोला, नॉर्थ टू केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। कुछ कॉमन वर्ड स्टोरी हमें इन जगह से एक ही जैसे मिलते हैं देखने के लिए। ऑल्सो जो हमें मिलते हैं एविडेंस वर इनॉर्मस रीजनल वेरिएशन इन द वेज इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी। कुछ रीजनल वेरिएशन, अब रीजनल वेरिएशन कैसे आएंगे, ओब्वियसली आप देखिए कोई भी टेक्स्ट अगर लॉन्ग टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर सर्कुलेट हो रहा, तो वहां की सोसाइटीज, इकोनॉमी, पॉलिटिकल उसमें इंक्लूड होते जाएंगे टेक्स्ट में। तो यहाँ पे वही रीजनल वेरिएशन की हिस्टोरियंस बात करना चाह रहा है। These variation were documented in footnotes and appendices to the main text. Okay, जो वेरिएशन उनको चेंजेस मिले उन्होंने क्या किया, किताब के या तो आखिरी में लिख दी गए या फुटनोट्स, जैसे किताब के नीचे फुटनोट्स होते हैं ना, वहां पे उन्होंने मार्क कर दिया गया।
Okay, taken together more than that half of the 30 pages were devoted to these variation. अब जो 1300 पेजेस थे ये यही वेरिएशन को डिवोट करती है. ओके, देन अब यहाँ पे देखिए, in a sense these variations are reflective of the complex process that shaped early social histories through dialogues between the dominant tradition and resilient local ideas and practice. अब जो भी वेरिएशन, जो डिफरेंट वेरिएशंस उसको मिले, जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो उनमें चेंजेस मिले, वो बेसिकली क्या थे, वहाँ ये इसी सब कॉन्टिनेंट और रीजनल में जो सोसाइटी में चेंजेस आए, जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उसमें चेंजेस आए, वो यहाँ पे शो करना चाहिए. और किसी जो डोमिनेंट ग्रुप होते जैसे राजा हो गए, वो वहां पे क्या ऑर्डर दिए गए, वो यहाँ पे 1300 का जो पेजेस था वही यहाँ पे दिखाया गया है. These dialogues are characterized by moments of conflict and as well as consensus. अब हिस्टोरियंस इस लाइन के द्वारा ये मैसेज देना चाहता है, जो कुछ तो ऐसे हैं जो हम मान सकते हैं, जो ये चेंजेस हो सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी है जो उस चेंजेस में क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब हम विश्वास नहीं कर पाते हैं जो रियली में ये चेंजेस अक्कर उस समय सोसाइटीज पे थे या नहीं थे. Okay, our understanding of this process is derived primarily from the text written in Sanskrit by the Brahmins. Okay, अब कुछ ऐसे जो ब्राह्मण के द्वारा जो लिखे गए टेक्स्ट, जैसे धर्मसूत्र की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, उनके द्वारा हिस्टोरियंस पढ़ के पता लगाते हैं जो क्या हमें अंडरस्टैंडिंग और क्या हमें समझ में आता है. When issue of social history were explored for the first time by the historian in the 19th and 20th century में, जब हमारे हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे, जब वो स्टडी करना चालू किया तो देखो उन्हें क्या पता लगाते, दे टेंडेड टू टेक दिस टेक्स्ट और फेस वैल्यू, उसे फेस वैल्यू के तौर पर लिया गया, और बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन दिस टेक्स्ट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस. और फिर उन्होंने ये कंक्लूजन पे पहुंचे जो भी उस टेक्स्ट में लिखा गया है वो एक्चुअली प्रैक्टिस में थे सोसाइटीज में. ओके, अब देखिए सब्सिक्वेंटली उसी तरह स्कॉलर्स बिगेन स्टडिंग अदर ट्रेडिशन, कुछ और भी ट्रेडिशन को स्कॉलर्स पढ़ते हैं, फ्रॉम वर्क इन पाली, जैसे आप देख रहे प्राकृत एंड तमिल, जैसे मैंने बताया जो डिफरेंट रीजनल वेरिएशन जो थे उसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को, डिफरेंट टेक्स्ट को हिस्टोरियंस स्कॉलर्स पढ़े. एंड दीज स्टडीज इंडिकेट दैट द आइडियाज कंटेनिंग इन नॉर्मेटिव Sanskrit text were to be the whole recognized as authority. Whatever the ideas were there in the several texts, they are basically क्या, authoritative. Okay, पहले norms के रूप में लिखे गए और फिर वो authoritative बन गए. Okay, then they were also questions and occasionally even rejected. Sometimes उस पे questions भी उठाया जाता है और कभी-कभी उस question को reject भी कर दिया जाता है. It is important to keep this in mind. We examine how historian reconstruct social history. तो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने के लिए ये रखना जरूरी है. अब ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, how historians are basically reconstruct the several history in different parts of the subcontinent. तो ये यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है. तो हमें यही माइंड में रखना है जो हिस्टोरियन ने कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया. अब देखिए ये पेज देखिए, यहाँ पे फिगर में क्या कहता है, फिगर 3.2 में, अ सेक्शन ऑफ ए पेज फ्रॉम द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द सेक्शन प्रिंटेड इन लार्ज, जैसे ये लार्ज एरिया में जैसे आप लिखे हैं लार्ज बोल्ड लेटर्स इन पार्ट्स ऑफ द मेन टेक्स्ट, ये मेन टेक्स्ट, अब ये रीजनल होंगे. द स्मॉलर प्रिंटेड लिस्ट वेरिएशन इन डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच वर केयरफुली कैटलॉग. इसको मतलब डिफरेंट तरह से आप देख सकते हैं, कॉमा मतलब अच्छी तरह से कैटलॉग किए गए हैं, जो कैसे किस चीज का मीनिंग क्या होता है. इसको इंग्लिश में भी हिस्टोरियंस ने देख सकते हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, जो रीजनल वेरिएशन थे. अब किंगशिप एंड मैरिज एंड मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिस. अब यहाँ देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगशिप, how the kinship basically evolved in early societies and why, how many types of marriage basically there, जिसमें आप डिफरेंट जैसे द्रौपदी का हम पढ़ेंगे. ओके, उस मैरिज को क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे वो वहां पे स्टडी करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हिस्टोरियंस. फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज, फैमिली के बारे में कुछ पढ़ते. देखें, we often take family life for granted, हम बहुत हल्के से लेते फैमिली को. But however, you may have noticed that not all families are identical. हाँ, हर फैमिली आइडेंटिकल एक समान नहीं हो सकती है. They vary in terms of number, नंबर में वेरीज कर सकते हो मेंबर. Their relationship with one another always the kind of activity they share. कुछ ऐसे एक्टिविटीज थे जो शेयर कर सकते और उनके कुछ एक्टिविटी अलग भी हो सकते थे. Often people belonging to the same family, जैसे सेम फैमिली आपके घर में चाचा ताऊ आंटी अंकल जो हुए, जो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे,
क्या करेंगे, फूड शेयर करेंगे, अदर रिसोर्सेज जैसे खेत है वो आप शेयर करते हैं, एंड लाइव वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। कुछ शादी ब्याह पूजा होता है तो आप क्या रिचुअल्स एक साथ करते हैं। तो वहीं पे ये हिस्टोरियंस ये फैमिली को जब स्टडी करता है और अर्ली लाइफ के बारे में, तो वो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। फैमिलीज आर यूजली पार्ट ऑफ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव, जिसको रिलेटिव्स बोलते हैं, और अब टेक्निकल टर्म में इसको किनफोक भी बोलते हैं, किनफोक, विद द हेल्प ऑफ मैरिज, विद द हेल्प ऑफ ब्लड, कैसे आपका रिलेशन बनता है मतलब दूसरे लोगों के साथ। ओके, व्हाइल फैमिलियल टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल एज बेस्ड ऑन, जैसे मैंने बोला, ब्लड, एंड दे आर डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज। इसको हिस्टोरियंस ने कुल अलग अलग डिफरेंट वे से भी डिफाइन किया है, वो देखते हैं। जैसे फॉर इंस्टांसेस सम सोसाइटीज रिगार्डेड कजन्स एज बीइंग व्हाट, ब्लड रिलेशन, कजन्स को जैसे ब्लड रिलेशन के तौर पे हिस्टोरियंस ने कहा, वेयर एज अदर डू नॉट, कुछ हिस्टोरियंस इसको कजन्स के तौर पे नहीं मानते। For early societies, historians can retrieve what information about elite families easily. It is however far more difficult. अब यहाँ पे हिस्टोरियंस ये कहना चाह रहा है, जो जितने भी रिच सेक्शन ऑफ द पीपल थे उनकी हिस्ट्री तो हमें आसानी से मिल जाती है, बट जैसे कॉमन पीपल हो गए उनको हिस्ट्री नहीं मिल पाती है। तो आप जब मॉडलर कोर्स से स्टार्ट करेंगे तो हम सवेल्टन एक हिस्टोरियंस हमारे थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द कॉमन मासेस को लिखा है। ओके, तो हम उस पर अच्छी तरह देखें हिस्टोग्राफी क्या होता है कॉमन मासेस का। यहाँ पे हिस्टोरियंस बस यही लाइन कहता है, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हमें हिस्ट्री इजिली मिल जाती है, बट अगर हम कॉमन पीपल की बात करते हैं तो उनका इतिहास के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, देन उसके बाद देखते हैं हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइजेस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किंगशिप। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एन व्हाट इनसाइट इनटू पीपल थिंकिंग, जो पीपल क्या सोचती है जब उनके हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडियाज वुड हैव शेप्ड देयर एक्शन। अब इसमें कुछ आइडियाज जो उनके एक्शन में परिवर्तित देखने को हमें मिलते हैं। ओके, वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है, जस्ट एक्शन मे हैव लेड टू चेंजेस इन एटीट्यूड। जब उनके आइडियाज थे वो एक्शन में देखे और फिर उसके बाद उनके एटीट्यूड में चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, अब टर्म्स ऑफ फैमिली एंड यहाँ पे देखिए संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुला, कुला आप कुल भी बोल सकते हैं, कुला भी बोल सकते हैं, टू डेजिग्नेट व्हाट फैमिलीज एंड जनती फॉर द व्हाट लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक। जो फैमिली जो होती है, जो उनका संबंध होता है, उसको लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोक बोलते हैं। द टर्म वंशा इज यूज्ड फॉर लीनिएज, वंशेज जो होते हैं हमारे, जो आते हैं आपके नाना के दादा के वंशेज, उसको लीनिएज बोलते हैं, उसको संस्कृत में वंशा बोल सकते हैं। देन है द आइडल ऑफ पैट्रिलिनी। यहाँ पे देखेंगे पैट्रिलिनी, वैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। कैन वी आइडेंटिफाई पॉइंट्स व्हेन किनशिप रिलेशन चेंज्ड। हम देखते हैं किनशिप रिलेशन कैसे चेंज होता है। ओके, एट वन लेवल द महाभारत स्टोरी, अब देखो महाभारत स्टोरी की बात करता है। About this, it describes feud over land and power between two groups cousins, the Kauravas and पांडवा की बीच लड़ाई होती है। क्यों होती है? ऑब्वियसली बात है, लैंड के लिए होती है वहां पे। तो यहीं पे बोला है जो पैट्रिलिनियर रिलेशन है वो कैसे डेवलप होता है। Who belong to a single ruling family, as all of you know, सिंगल रूलिंग फैमिली से जो कुरुज जो क्षेत्र होता है, ओके, वहां से वो रूल करते थे। A lineage dominating one of the जनपदा, हम जैसे पिछले लेक्चर में महाजनपदा पीरियड पढ़े, उसी में से एक जनपद था कुरु, वहां से ये रूल करते थे। अल्टीमेटली द कन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल, एक बैटल में उनका कन्फ्लिक्ट एंडेड होता है, इन विच पांडवा इमर्ज विक्टोरियस एंड विद द हेल्प ऑफ कृष्णा। आफ्टर दैट पैट्रिलिनियन सक्सेशन वाज प्रोक्लेम। उसके बाद जो पैट्रिलिनियन था, जो पितृ समाज आप बोलते, पितृ समाज जो आप बोल सकते हैं, वो वहां से चालू होता है। बट हिस्टोरियन से यहाँ पे एक और मैसेज देना चाहता है, देखना इस लाइन में, while पैट्रिलिनी had existed prior to the composition of the epic, महाभारत के कंपोज होने से पहले भी ये पितृ समाज, पितृ प्रधान समाज एग्जिस्ट करती थी। ओके, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत reinforce the idea that it was valuable। अब जो भी सेंट्रल स्टोरी और सेंट्रल आइडिया जो है वो यही हिस्टोरियंस को बोलती है, जो ये इनके जो भी स्टोरी है वो वैल्यूएबल है हमें फर्दर स्टडी करने के लिए। ओके, दो देखो पैट्रिलिनी मींस ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ओके, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मैट्रिलिनी इज द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज द ट्रेस थ्रू द मदर। आपके माँ के जो लीनियज जो वंश से जो आ रहे, आपके नाना से क्या टाइटल आ रहे हैं, वो यहाँ पे मैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी पिता के तरफ से जो आते हैं वंश से जो भी चल रहे हैं।
अंडर पैटर्ली सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज। अब ऑब्वियसली बात है, आज भी सोसाइटी में देखे होंगे, अगर सपोज पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटे को सारा प्रॉपर्टी मिलता है और लेडीज को मैक्सिमम डिप्राइव किया जाता है रिसोर्सेज से। तो वही यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा है, सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केस ऑफ किंग। अगर किंग पे है तो राज पिता के बाद पुत्र ही बैठेगा उस गद्दी पे, of their fathers when the later died। most ruling dynasties like claim to follow this system। जितने भी रूलिंग डायनेस्टी थी मैक्सिमम यही सिस्टम फॉलो करती थी। although there were variation in the practice, but हम कुछ देखते हैं वेरिएशन में। इसमें हम प्रभावती गुप्ता की भी बात करेंगे। sometimes there were no sons, जैसे सन नहीं है तो in some situation brother succeed one another, एक के बाद एक जैसे भाई बैठेगा। जैसे क्या है, जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उनके सन नहीं है तो उसका भाई बैठेगा, एक के बाद छोटा फिर उससे छोटा। तो वही यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा है। समटाइम्स अदर किंग्समैन क्लेम द थ्रोन एंड वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन सच एज व्हाट प्रभावती गुप्ता, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ओके, एक्सरसाइज पावर, जिन्होंने अपने कंट्रोल अपने हाथ में पावर लिया। क्यों लिया? क्योंकि शी हैज फ्यू करेजेस टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन। ओके, देखिए द कंसर्न विद पैट्रिलिनी वाज नॉट यूनिक टू रूलिंग। ये कुछ यूनिक फीचर्स नहीं है रूलिंग सोसाइटी के लिए, ये कॉमन ही फीचर है। इट इज एविडेंट इन द मंत्रा इज रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा, जो हमारा है, जो अर्ली टेक्स्ट जो हमारा था उसमें हमें ये मिलता है। इट इज पॉसिबली दैट दीज एटीट्यूड्स वर शेयर बाय वेल्दी मैन एंड दोज हु क्लेम हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। और जो ये एटीट्यूड्स हमें मिलता है ये किसके में मिलता है? जो ब्राह्मण्स हो गए, जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गए, किंग हो गए एंड सो ऑन। ओके, कॉमन पीपल में हमें ऐसा कुछ उनकी हिस्ट्री हमें देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, ये देखिए मैप वर्क है आपका जो एनसीईआरटी का अगेन दिया, जो जनपदा पीरियड जो हमारा था इसमें देखिए हस्तिनापुर, ओके, इंद्रप्रस्थ आप देख सकते हैं, मथुरा देखते हैं, सुरसेना देख सकते हैं, कुरु जैसे हम बात किया 16 महाजनपद, जहां से वो क्या कुरु है, पांडव जो कौरव और पांडव जो रूल किए थे। दे मल देख सकते हैं, जब महापरिनिर्वाण हुआ था हमारे गौतम बुद्ध का तो वहाँ मल का ही मतलब वहां पे राज था। कौशाला, अयोध्या, ये सारे हमारे जितने भी महाजनपद पीरियड थे उसको यहाँ पे द कुरु एंड पंचाला रीजन एंड नेबरिंग एरिया, जो उनके आसपास जो भी एरियाज थे वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। सो प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, अब कैसे सन्स को, पुत्र की उत्पत्ति जैसे कैसे होती थी। तो गाइज मैं यहाँ पे एक मैसेज ये देना चाहूंगा, डोंट ट्राई टू गो एंड रीड एनसीईआरटी, ओके, बिकॉज बेसिक पर्पस ऑफ दिस कोर्स to build your basic with the help of these notes। how these notes is really helpful because मैंने हर सब्जेक्ट के हर वर्ड को, हर डिफरेंट वर्ड्स को इस पे क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डोंट गो टू एनी ऑनलाइन लाइक चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी एंड सो ऑन। ओके, हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे इसके अच्छी तरह। ये हमारा एक ऋग्वेदा है, वहां से हमें कुछ लाइनें देखने को मिलती है। विच वॉज प्रोबेबली इंसर्टेड विच पीरियड, देखिए सी 1000 BC। अब सी हमें अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो हमें एग्जैक्ट डेट पीरियड नहीं है तो हम उससे पहले सी लगा रहे हैं। सिर का इसका फुल फॉर्म होता है टू बी चांटेड बाय द प्रीस्ट व्हाइल कंडक्टिंग द मैरिज। अब ये जब भी प्रीस्ट अगर कोई मैरिज कंडक्ट कराएगा तो कुछ मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वही मंत्र के बारे में यहाँ बताया गया। इट इज यूज्ड इन मेनी हिंदू इवन टुडे, आज भी ये चला आ रहा है। क्या कहता है पिता, क्या कहता है? देखो फादर, आई फ्री हर फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से अपनी पुत्र को फ्री करता हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर। देयर यहाँ पे डिनोट किया गया है पति के प्लेस को, ठीक है। आई हैव फाउंड हर फैमिली देयर, मैं देखना चाहता हूँ उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरह उस फैमिली में, ओके। सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंद्रा, इंद्रा क्या जो डेटीज होते थे हमारे गॉड, उनको बहुत वैल्यू माना जाता था। शी विल हैव फाइन सन्स, उसको एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो सके। एंड फॉर्चुनेट इन द हर हस्बैंड्स लव, और उसका जो पति का प्यार है वो उसको मिल सके। यहाँ पे यही मैसेज जो ऋग्वेदा के थ्रू आज भी ये मैरिज होते हैं तो यहाँ पे चांट किया जाता है। इंद्रा वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज, इंद्रा के बारे में बोला गया, और गॉड ऑफ वारफेयर एंड रेन, here and there refer to a father and husband house respective। अब देखो with the help of history what do we try to understand। अब देखो इतिहास पढ़ के आपको क्या पता लगता है? सोसाइटी के बारे में पता लगता है, जो सोसाइटी कैसी थी और कैसी अभी चली आ रही है। तो आप किसी से क्वेश्चंस कर सकते हो हिस्ट्री के बारे में, अपने ज्योग्राफी के बारे में, तो ये हिस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में। अब देखो यहाँ पे एक अगेन ये पैराग्राफ है आदि पर, जो फर्स्ट सेक्शन जो है महाभारत का उससे लिया गया है,
और ये बेसिकली मैं अभी पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं स्टोरी आपको सुना दे रहा हूँ। जो कौरव थे वो बेसिकली अपने पिताजी को कहते हैं धृतराष्ट्र को, जो आप इनकैपेसिटी थे, आप डिसेबल थे, जिसके कारण ये मतलब गद्दी किसको मिली, पांडु को मिली, और अगेन उसके पांडु पुत्रों को मिलेगी, और फिर उसके जितने भी पोते होंगे उसको मिलती जाएगी। ऐसे तो हमारे बच्चे को शूद्र समझा जाएगा और हमें इस राज में कभी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो वही ये लाइन यहाँ पे बेसिकली है, जस्ट गो एंड रीड, डोंट वरी, वेरी इजी वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये रीड द पैसेज एंड लिस्ट द डिफरेंट क्राइटेरिया सजेस्टेड फॉर बिकमिंग किंग। क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं किंग बनने के लिए, वही ये पैराग्राफ यहाँ पे हिस्टोरियंस ने और यू के लिख दिया है। ओके, सो अब देखिए, अब ये लास्ट कुछ स्लाइड है हमारे, वो देखते हैं। रूल्स ऑफ मैरिज, अब मैरिज के कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जो कैसे मैरिज होगी, जो आज भी संपन्न हो रही है। While some were important for the continuity of the patrilineage, ऑब्वियस बात है, पुत्र को क्या समझा जाता था, अच्छा माना जाता था वंश बढ़ाने के लिए। ओके, और डॉटर वर viewed rather differently within his framework, डॉटर को उतने अच्छे तरह से वो नहीं देखते थे। then they had no claim to the resources to the house, डॉटर को रिसोर्सेज पे कोई क्लेम नहीं था। एक्सेप्शनल प्रभावती गुप्ता, few exceptional are always there in history. At the same time, marrying them what into the families outside the king was considerable desire. आप अपने जो कीन होंगे, अपने गोत्र होंगे, उससे आप आउटसाइड ही मैरिज कर सकते हैं, सेम गोत्र में आप मैरिज नहीं कर सकते, और ये आज भी चला आ रहा है। दिस कॉल्ड एक्सोगेमी बोलते हैं उसको, लिटरली मैरिंग आउटसाइड। ओके, एंडोगेमी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मीन दैट द लिव्स ऑफ यंग गर्ल एंड वुमेन बिलोंगिंग to the families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that जिनको राइट टाइम पे राइट पति मिल सके। वहां पे यही कहा गया है यहाँ पे मैरिज ऑफ रूल्स का। और ये किनकी ड्यूटी होती थी, उनके पिता की ड्यूटी होती थी। और आज भी सोसाइटी में, अभी भी देखो उस समय की सोसाइटी जो बनी हुई थी, आज भी मोस्टली 90% हमारी सोसाइटी उसी पैरेलल पे रन कर रही है। दिस गेव राइज टू द बिलीव दैट कन्यादान, ओके, और द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज was an important religious duty of the what father। मैं बोल रहा हूं आगे, फादर की ड्यूटी होती थी। विद द इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स, जब न्यू टाउन्स का डेवलप हुआ, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, ओके, सोशल लाइफ बिकम मोर कम्प्लेक्स। जो सोशल लाइफ होती है, सामाजिक जो जीवन होती है, वो बहुत जटिल हो गई। ओके, people from near and far met to buy and sell their product and share what आइडियाज इन द, अब डिफरेंट पीपल्स आते थे एक जगह, मार्केट में मिलते थे, वो शेयर आइडियाज करते थे, वैल्यू शेयर करते थे। तो इसी यही ये लाइन यही आप रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दिस में लेड टू ए क्वेश्चन अबाउट अर्लियर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में क्या है आपको पता है? रिलीजियस मूवमेंट पढ़ेंगे, जैनिज्म को पढ़ेंगे, बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, जो कैसे रिलीजियस बिलीफ चेंजेस हुए व्हेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म राइज्ड। देखो, फेसेस विद दिस चैलेंजेस, अब इस चैलेंज को फेस करने के लिए ब्राह्मण्स ने क्या किया? The Brahmins responded while laying down a course of social behavior in a great detail। कुछ सोशल नॉर्म्स एंड कोड्स को उन्होंने लिखा, क्या डिटेल मैनर में। These were meant to be followed by Brahmins in particular and the rest of the society in general। अब उन्होंने जो कोड्स एंड रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने लिखा, जिसको धर्म सूत्रास बोलते हैं, वो क्या ब्राह्मण तो फॉलो करेंगे और पूरा रेस्ट ऑफ द जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। Okay, from the c 500 BC, again डेट दिया गया। These norms were compiled in Sanskrit text known as what? धर्म सूत्रास, और इनके से धर्म शास्त्र जिसको कहा गया है। Okay, the most important of such work, the Manu Smriti, was compiled between the which period? C 200 BC to C 200 CE। BC before common era, okay, CE common era, BC what is the difference between BC and CE? बिफोर द जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है उससे पहले हम क्या काउंट करते हैं? BC, आफ्टर दैट CE, वही है। While the Brahmins authors of these texts claimed that their point of view had universal validity, okay, and that what they prescribed had to be obeyed by everyone and everybody, it is like that real social relation were more complicated। अब जो भी उन्होंने धर्म शास्त्र, धर्म सूत्र जो लिखा, वो हर किसी को फॉलो करेगा, यूनिवर्सल उसकी वैल्यूज होगा, और इसके कारण सोसाइटी क्या है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स रास्ते पे चल रही है। बट ब्राह्मण ने उसको ये लिख के सिंप्लीफाइज करना चाहा। But do you think with the help of this dharma shastra, this society complexion is really made easy or not? It's up to you. Just think it. Besides, given the regional diversity within the subcontinent and the difficulties of communication, the influence of Brahman was no means all pervasive।
अब ये नहीं है जो अब देखो जैसे जैसे सोसाइटी में न्यू कम्युनिटीज का डेवलप होगा तो वो ऑब्वियसली बात है ब्राह्मण्स की वैल्यूज रूल्स क्यों फॉलो करेंगे। वैसे ही हमारे किन्होंने गौतम बुद्ध ने नहीं किया, जिसके कारण बुद्धिज्म का राइज हुआ। जैनिज्म आप देखेंगे अजीब का सेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, तो वही बोलना था। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट धर्मा सूत्रा एंड धर्मशास्त्र रिकॉग्नाइज्ड एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब 8 फॉर्म से मैरिज की यहाँ पे बात की गई है धर्मसूत्रा में। ऑफ दीज द फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड, जो पहले 4 थे उनको गुड माना गया है, while the remaining were condemned, और जो रिमेनिंग 4 थे उसको अच्छे नहीं माने गए हैं। इट इज पॉसिबली दैट दीज वर प्रैक्टिस बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। मैंने अभी क्या कहा, ऑब्वियसली बात है डिफरेंट सोसाइटी जब आएगी तो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं मानेगी। ओके, तो उन्होंने अपने कुछ मैरिज बनाया, कुछ मैरिज देख ले। एंडोगेमी हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Within a unit, this could be a king group, caste group living in the same locality में आप शादी कर लेते हो। Exogamy outside, पोली देखो यहाँ पे एन लिखा है, अगेन मिस्टेक है एनसीईआरटी का। पोलीगेमी आप कर सकते हैं। Is the practice of a man having several wives, आप बोल सकते हैं जैसे एक पति के बहुत सारी पत्नियां। पोलेंड्री, द वुमेन हैव लॉट ऑफ हस्बैंड्स, लाइक द्रौपदी का यहाँ पे सिस्टम पढ़ सकते हैं। ओके, देन ऐसे सकते हैं द गोत्रा ऑफ वुमन, हाउ गोत्रा इज रियली इंपोर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सतवाहना। अब गोत्र क्या होते हैं, वो इंपोर्टेंस कैसे होते हैं, वो यहाँ पे हिस्टोरियंस फिर से स्टडी करते हैं और बताते हैं। One Brahminical practice which period 3000 BC onwards was to classify people especially Brahmins in terms of gotras. Each gotra was named after a Vedic seed. अब गोत्र कैसे पढ़े, भरद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, वत्स गोत्र है। तो जो हमारे संत थे उन्हीं के हम क्या है लीनियज है, उन्हीं के द्वारा पे है ना जो वैदिक सिर, हर एक गोत्र के पीछे एक वैदिक सिर है, मतलब एक संत है, उन्हीं के टर्म पे गोत्र का नाम पड़ा। एंड ऑल दीज हु बिलोंग टू द सेम गोत्रा वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट। गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती, क्यों, भाई बहन समझा जाता है। जब मैं मॉडलर कोर्स बढ़ाऊंगा तो इसमें मैं पूरा हिस्ट्री बताऊंगा कैसे गोत्र का डेवलप हुआ, कैसे एक गोत्र वाले भाई बहन बने। ओके, 2 rules about the gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's goth, and किसके गोत्र में वो आएंगे, adopted their husband on marriage, and members of the same gotra could not be married. We have already discussed. Okay, one way to find out, अब कुछ देखते हैं, one way to find out whether this was commonly followed is to consider the names of man and woman. अब देखते हैं तो क्या ये man and woman के द्वारा फॉलो किए जाते थे कि नहीं। Which were sometimes derived from the गोत्र नेम, कभी कभी हम ऐसा देखता जाते तो गोत्र से ड्राइव हो गया है, ठीक है। These names are available for powerful ruling lineage such as the सतवाहना, जैसे मैंने बोला सतवाहना को स्टडी करेंगे कैसे उन्होंने गोत्र को फॉलो किया, मैत्रिलिनी, पैत्रिलिनी। ओके, who ruled over parts of Western India and Deccan Plateau. When we are going to study geography, we'll see Deccan Plateau, how the formation of the Deccan Plateau took place in the Indian subcontinent. यहाँ पे आप समझ लीजिए वेस्टर्न और जो हमारा साउथ का जो सेक्शन है बेसिकली उसी को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, जो आप इस पार्ट को एरिया को बोल सकते हैं। ओके, सो हिस्ट्री में ज्योग्राफी में हम बात करेंगे इसका ज्योग्राफिकल फीचर। Several of their inscriptions have been recovered, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन को रिकवर किया गया which allow historian to what traces family ties including the marriage। जो हमें मिले रिसोर्सेज मिले, सोर्सेज मिले, उसको हमें स्टडी करके पता लगाते हैं उनके क्या फैमिली टाइज के बारे में और मैरिज के बारे में। ओके, अब देखो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज यहाँ पे दिया, देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। फर्स्ट जो है गिफ्ट, किसके फादर के द्वारा गिफ्ट किया जाएगा अपने डॉटर को अच्छी तरह वस्त्र पे, आभूषण से, ठीक है, एक के लर्न वेद, जिसको वेद की अच्छी नॉलेज है उसको। सेकेंड, फोर्थ मैरिज कहता है जो गिफ्ट ऑफ ए डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस, द कपल को एड्रेस करेगा फादर, जो मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर, आप दोनों एक साथ ड्यूटी अच्छी तरह परफॉर्म किया, एंड हैज शो ऑनर टू द ब्राइडग्रूम, और जो पति होगा उसके लिए वो ऑनर शो करेगा। फिफ्थ है व्हेन द ब्राइडग्रूम रिसीव, जो भी होगा पति उसको तभी वो वधू मिलेगी जब वो कैपेबल के अनुसार वो धन दे सके उनके पिता को। एंड सिक्स्थ है, आप लव मैरिज की बात कर सकते हो, सिक्स जो हमारा कहता है लव मैरिज की बात करता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछना चाह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉर्म्स डिस्कस वेदर द डिसीजन अबाउट द मैरिज वाज टेकन बाय विच ग्रुप। अब इसमें जो डिसीजन जो दिए गए हैं किस किस के द्वारा लिए गए हैं वो आपको बताने हैं।
तो आप बोल सकते हैं पिता के द्वारा लिए गए हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ खुद लिए गए हैं डिसीजन। ओके, नेम ऑफ द सतवाहना किंग फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। आप देखो सतवाहना जो किंग थे हमारे जो डेक्कन में जो मैंने बात किया उनके नेम्स को पढ़ेंगे और विद द हेल्प ऑफ नेम वी ट्राई टू फाइंड आउट द गोत्राज। ओके, यहाँ पे देखते हैं देयर आर नेम्स ऑफ द सर्वल जनरेशन ऑफ सतवाहना रूलर्स रिकवर फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। नोट द यूनिफॉर्म टाइटल राजा, ऑल्सो नोट द फ्लोइंग वर्ड विच एंड विद द टर्म पुत्र। आप समझे, संस्कृत में बोलते हैं अप्राकृत वर्ड मीनिंग सन, जिसको सन भी बोला जाता है, और तम गौतमी पुता मीन्स सन ऑफ गौतमी। ओके, नेम्स लाइक गौतमी एंड वशिष्ठ आर फेमिनाइन, जो आप बोल सकते जो फेमिनिस्ट जो होते हैं, फॉर्म्स गौतमा एंड वशिष्ठ। वैदिक शीर आफ्टर हुम गोत्र नाम, जैसे वैदिक शीर के द्वारा इनको गोत्र को लिया गया। जैसे आप देख सकते हैं राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ओके, राजा वैष्टि पुत्र श्री पुल्लमयी, ओके, राजा गौतमी पुत्र समी श्री याना सतकर्णी। पता है ये सारे उनके गोत्र के नाम पे दिए गए हैं। और मेट्रोनॉमिक्स देख लेते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद जिसे कहा जाता है, कंटेन्स व्हाट, अ लिस्ट ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ हुम वर डेजिग्नेटेड बाय मेट्रोनॉमिक्स। जो मात्र के लीनियज से आ रहे हैं उसी को मेट्रोनॉमिक्स बोला जाता है। हाउ मेनी गौतमी पुत्र, ये इसी को है जो कितने पुत्र के टाइटल जो बेसिकली गोत्र से लिए गए हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं सतवाहना एंड देख सकते हैं सतवाहना हिंडिस बाय, दिस इज वन ऑफ द रियल स्क्रिप्चर डिपिक्शन ऑफ ए रूलर फ्रॉम द वॉल ऑफ केव। ठीक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क को डोनेट किए गए, तो वहां पे ये बनाया गया सतवाहना रूलर के द्वारा। तो एक दो स्लाइड और है, फिर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वर पॉलीजेनियस, दैट इज हैड मोर देन वन वाइफ, जैसे मैंने पहले आपको देखा। एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ वुमेन हु मैरिड सतवाहना रूलर्स इंडिकेट्स दैट मेनी ऑफ देम हैड नेम्स ड्राइव फ्रॉम गोत्रा। जैसे हमने देखा ना, गोत्रा से उसके नाम ड्राइव होते थे। गोत्रा सच एज गौतमा, वशिष्ठा एंड देयर फादर गोत्रास आल्सो। They evidently retain these names instead of adopting the names derived from their husband gotra name as they were required to according to Brahminical rules। अब ये जो कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ द रूलर्स होते थे, चाहे प्रिंसेस होते थे, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को ना मान के वो अपने खुद के गोत्र एक्वायर करते थे। ओके, what is also apparent is that some of these women belong to the same group। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे जो सेम गोत्र से बिलोंग करते थे। ओके, आप देखिए हार्ड वर्ड एंड सिंपली मीनिंग, जो मैंने बोला एम्बिशियस, स्कॉलरशिप, इनिशिएटेड, मनुस्क्रिप्ट, जो हमने वर्ड वहां पे पढ़ा, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने सबके वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिख चुके हैं। सो आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं रिलेशनशिप, रिचुअल, किनफोक, रिगार्डेड, रिलीट, इन्वेस्टिगेट, मैं ये नहीं पढ़ा रहा। आप देखो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आंसर। आप ये क्वेश्चंस आंसर करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर के बारे में और एनसीईआरटी के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। देखिए महाभारता डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन किससे, ऋग्वेदा मंत्रा मेंशन इन टेक्स्ट वाज ड्यूरिंग विच, ऋग्वेदा की बात किया गया, मैरिज की बात, हु लेड द प्रोजेक्ट ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। व्हाट आर मनुस्क्रिप्ट, क्या होते हैं, ओके, कितना टाइम लगा प्रोजेक्ट को, पैट्रिलिनी, मैट्रिलिनी, कुला, जितने भी कौरव पांडाज, सारे चीज मैंने आंसर के साथ दिए हुए। बस आपको जस्ट जाना है, लेक्चर देखना और पढ़ना। एक्सप्लेन हाउ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत वाज प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर हुआ हमारा जो महाभारत को आलोचन करना चाहा। व्हाट वर द मेन फाइंडिंग ऑफ स्कॉलर, क्या क्या उनको मिला महाभारत को जब मनुस्क्रिप्ट को स्टडी किया। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ पैट्रिलिनी विथ रेफरेंस टू द महाभारत। ओके, सो आप देख सकते हैं पूरा आंसर, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे अच्छी तरह दिए गए हैं। ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के 5 पॉइंट आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो मैरिज विद अर्ली सोसाइटीज, अगेन ये देखिए इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है मैंने 50% चैप्टर अभी कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और अच्छी तरह कवर करेंगे। तो सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोइंग टू रीड एनसीईआरटी फ्रॉम एनी एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो जस्ट गो एंड सी ऑल दीज लेक्चर्स which are basically very helpful for you. Okay, so thank you so much. Okay, please comment and review.